Good morning, students. Today we will discuss about the chapter Combustion and Flame. The chemical process in which a substance reacts with the oxygen to produce heat is called combustion. So combustion क्या है? ये एक chemical process है जिसमें कोई भी substance, कौन सा substance? Combustible substance reacts with oxygen to produce heat is called combustion. मतलब अब इस बात से ये क्लियर है कि कंबस्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना. कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, इसी प्रोसेस को कंबस्शन कहते हैं. The substance which undergoes combustion is called combustible substance. It is also called a fuel. Sometimes light is also produced during combustion, either as flame or as a glow. दो तरह के सब्सटेंस हैं आपके. एक होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, दूसरे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. फर्स्ट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. Substances which burn in air to produce heat and light are called combustible substances. जो एयर की प्रेजेंस में इजीली बर्न हो जाते हैं, इनको कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं. एग्जाम्पल है वुड, कोल, चारकोल, केरोसिन, LPG which is liquefied petroleum gas, CNG that is compressed natural gas. ये सारे combustible substances हैं. Another is non-combustible substances. The substances which do not burn in air and produce heat and light are called non-combustible substances. तो एग्जाम्पल किसकी आ जाएगी non-combustible substances में? सैंड, ग्लास, ग्रेवल, इन सब की एग्जाम्पल आ जाएगी. There are some conditions necessary for combustion. So what are these conditions? These are fuel, that is presence of combustible substance. तो फ्यूल क्या होगा यहाँ पे? combustible substance. And another condition is air. एयर क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो कि कंबशन के लिए बहुत नेसेसरी है. अनदर इज़ हीट, दैट इज़ इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जब तक एक टिपिकल इग्निशन टेम्परेचर तक राइज नहीं करेगा तब तक कंबशन नहीं होगी. सो दैट क्रिटिकल इग्निशन टेम्परेचर भी चाहिए. A substance will not burn without one or more of these conditions. Moving to the ignition temperature. It is that minimum temperature at which a substance catches fire and burns is called ignition temperature. A substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature. इसका मतलब क्या है? इग्निशन टेम्परेचर वो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिस पे कि सब्सटेंस फायर कैच करता है. अगर किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर उस मिनिमम टेम्परेचर से कम होगा जिसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, तो वो सब्सटेंस कंबशन, उस सब्सटेंस में कंबशन नहीं होगी, फायर नहीं प्रोड्यूस होगी. Here are few examples. The ignition temperature of kerosene is less than the ignition temperature of wood. इसका मतलब क्या है? केरोसिन ऑयल फायर जल्दी पकड़ेगा in comparison with wood. Substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. एग्जाम्पल पेट्रोल, अल्कोहल, LPG, CNG etc. ये सभी बहुत जल्दी से फायर पकड़ते हैं. क्यों? क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है. जिसका जितना लो इग्निशन टेम्परेचर उतनी ही जल्दी वो फायर कैच करता है. Now talking about types of combustion, there are three main types of combustion. One is rapid combustion, another is spontaneous combustion and another is explosion. So first is your rapid combustion. अब नेम से ही क्लियर है. Rapid combustion is a combustion in which a substance burns rapidly and produces heat and light with the help of external heat. Example, burning of LPG, burning of matchstick, ये सारे rapid combustion के example है. Another is your spontaneous combustion. The spontaneous combustion is combustion in which a substance burns spontaneously and produces heat and light without help of external heat.
स्पॉन्टेनियस का मतलब ही होता है अपने आप, मतलब जो अपने आप फायर कैच कर लेता है उसी को स्पॉन्टेनियस कहते हैं, मतलब ऑटोमेटिक। इसमें एग्जांपल है बच्चे फॉस्फोरस बर्न्स की। ये फॉस्फोरस स्पॉन्टेनियसली बर्न कर जाता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और किसकी एग्जांपल हो जाएगी, कोल डस्ट की। कोल माइंस में कोल डस्ट भी स्पॉन्टेनियसली फायर कैच कर जाते हैं। देन थर्ड इज़ एक्सप्लोजन। हम दिवाली में पटाखे आप सबने चलाए हैं, तो एक्सप्लोजन इज़ अ combustion in which a substance burns suddenly and produces heat and light and sound with the help of हीट और प्रेशर। इसका यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि साउंड प्रोड्यूस होता है हीट और लाइट के साथ, बहुत ही प्रेशर से। इसी को एक्सप्लोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स। So these are the various types of combustion: rapid combustion, spontaneous combustion and explosion। और ये इनके एग्जाम्पल्स भी हैं जो पिक्चर में शो हो रहे हैं। अब बच्चे आपके सिलेबस में एक और टाइप है कंबशन की, दैट इज़ स्लो कंबशन। आई डोंट नो वेदर इट इज़ इन योर सिलेबस और नॉट, बट ये आपकी नॉलेज के लिए आपको पता ज़रूर होना चाहिए। सो स्लो कंबशन, द टाइप ऑफ कंबशन विच टेक्स प्लेस एट स्लो रेट एट लो टेम्परेचर इज़ कॉल्ड स्लो कंबशन। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सुनी सुनी फेमिलियर सी लगती है, बट बच्चे इसके एग्जाम्पल्स फेमिलियर नहीं हैं। हमारी बॉडी में जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, या आयरन में जो रस्ट लगती है, वो प्रोसेस आपको नज़र नहीं आता है, लेकिन वो धीरे 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 होता रहता है प्रोसेस। रेस्पिरेशन भी धीरे धीरे होती है। वो फूड जो आप खाते हो उसका ब्रेक डाउन होता है, बर्निंग होती है और हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो कंबशन ही है ना, एक तरह की कंबशन है। तो वो भी एक कंबशन का ही टाइप है, और वो किसके अंडर आती है, स्लो कंबशन में आती है। इसी तरह आयरन में जो रस्टिंग हो जाती है, जो जंग लग जाती है, वो भी एक काइंड ऑफ कंबशन ही है। और ये कैसे होता है, इसका रेट क्या होता है, स्लो रेट होता है, बड़े ही धीरे धीरे जंग लगता है आयरन में भी, तो ये भी स्लो कंबशन के अंदर ही आती है। सो ये थे वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन। So in our next session we will discuss the next topics of this chapter. So अभी के लिए इतना ही करना है आपने। Thank you so much.